you have any questions, so you can unmute yourself and ask me questions in between. I'll explain and repeat so that you can really understand beautifully. So here we go. The first part that we need to understand about reading. Here in IELTS reading sections, you need to understand the reading is not all about understanding everything, okay, without understanding the question or without finding the answers. It's all about your comprehension, how comprehensively you are able to meet up the requirement. So what is comprehension and what is all about reading? I'll explain step by step. So the first things you need to understand about reading, there are a few tricks you can apply. So it has 60 minutes, 1 hour and 40 questions and 3 passages. Minimum 100, 2500 to 700 words limit. So you have to read passage 1 and you have to answer rest of questions. Passage 2, then rest of questions. Passage 3, rest of questions. In this way you will finish your reading sections step by step. But now if you look at this slide, now you need to understand scheming, scanning, vocabulary, logical analysis, reasoning, background knowledge, inference, contextual meaning, speed reading, time management, recollection, finding answers. What are those things I would like to tell you? Whenever you get your reading passages, so it's all about reading comprehension. Comprehension means understanding, how well you understand your questions and you transfer answer by finding out in the passages. First part is recommended, that is scheming. Scheming means when you read fast and understand the question and transfer answer immediately. That's your scheming. You don't need to read everything in detail step by step. You just want to focus on where the answer is available and you read fast. That's a scheming. यानी दूध से मलाई को निकाल देना, सिर्फ मलाई निकालना और कुछ नहीं. That is called scheming techniques. Scanning means when you read everything, हर एक वर्ड को पढ़ना, हर एक फ्रेजेस को पढ़ना, हर जगह पे अंडरलाइन करना, हर जगह पे आपको पहचानना है कहां पे कौन सा पैसेज में ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, यस नो नॉट गिवन है, मैचिंग कहां पे हो रहे हैं, हेडिंग्स कहां पे हो रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कहां पे हो रहा है, कौन क्या बोला है, इंफॉर्मेशन मैच कहां पे हो रहा है. नेक्स्ट इज योर वोकैबुलरी. यू नीड टू इंप्रूव योर वोकैबुलरी और ज्यादातर आपको सिनोनिम्स के ऊपर काम करना होगा. एंड कोलोकेशन. Collocation means word togetherness and your synonyms, so you can understand the keywords. Then logical analysis. Questions में जिस तरह से लिखा होगा उसी टाइप का सेम वर्डिंग, सेम स्टाइल आपको पैसेज में नहीं मिल सकता है. You may find, you may not find it also. So questions may disturb your mind, but we have to think logically. इसको logically आपको सोचना होगा. Questions में मान लीजिए evidence बोल के एक questions बनाया गया है और you have to find out the information इन पैसेज A to E का पैसेज के अंदर देखना है, तो उसी लाइन में कहीं पे वीकनेस लगा होगा. क्वेश्चंस में है एविडेंस बट पैसेज में है उसी इंफॉर्मेशन वीकनेस लगा के बनाया गया है. सो आपको लॉजिकल एनालिसिस से आपको ढूंढना होगा कि यही वही पॉइंट है, सेम चीज है जो क्वेश्चंस में ही है. सो यू हैव टू एनालाइज इट कि राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और पैसेज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पैसेज किस तरह से इंफॉर्मेशन दे रहा है, किस टॉपिक से बोल रहा है और इनसाइड मीनिंग क्या है, अंदर क्या मीनिंग है वो, राइट. देन योर रीजनिंग एबिलिटी. योर रीजनिंग मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंसेस. एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इसमें. सेंटेंस इंप्रूवमेंट कैसा हुआ है एंड हाउ इट कैन बी आंसर्ड, वो आपको एनालिसिस करना होगा. बैकग्राउंड नॉलेज. कभी कभी क्या होते हैं, कुछ टॉपिक के ऊपर बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो आपको यू कैन फील कंफर्टेबल, इसीलिए आपको मैगजीन्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर पढ़ने में पढ़ने के लिए हैबिट डालना होगा. सो द मोर यू रीड द मोर यू कैन अंडरस्टैंड. ए टॉपिक इज बेस्ड ऑन एविएशन बट यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट एविएशन क्योंकि बैकग्राउंड नॉलेज है ही नहीं. सो यू मे फेस लिटिल डिफिकल्टीज इनसाइड
और एट द टाइम ऑफ रीडिंग, तो धीरे धीरे जब आपका रीडिंग हैबिट बढ़ेगा एंड यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड थ्रू your vocabulary or your grammatical knowledge or your English language proficiency level, so you can understand it, you can feel better. But if you have little idea about background knowledge, you can really feel comfortable. Fine. Inference, क्या डिफरेंस निकालेंगे आप? डिफरेंस कहाँ पे है वो जानना इन्फरेंस है. कॉन्टेक्चुअल इज ऑल अबाउट आप जो जो वर्ड वोकैबुलरी जानते हैं वही वोकैबुलरी पैसेज में भी है लेकिन अलग सा मीनिंग में है. द मीनिंग व्हाट यू नो, it may not be the same meaning what is written in the passage. जैसे कि pitch, P-I-T-C-H, pitch का मीनिंग आपको पता है लेकिन उस पैसेज में pitch का मीनिंग और कुछ होगा, वो समझना जरूरी है. बॉल, बॉल का मीनिंग आपको पता है लेकिन वो उसी बॉल को अलग ढंग से लिखा गया है और उसका अलग मीनिंग है, वो समझना होगा. वो होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग. जैसे कि आप डिक्शनरी में चेक करेंगे, इफ यू लुक एट डिक्शनरी, you can find a single word has many different meanings. One word doesn't carry only one meaning, it has many meanings. That's actually your contextual meaning. Then आपको speed reading करना होगा, धीरे धीरे पढ़ना नहीं होगा. You have to focus on more on nouns, adjectives, main verbs and adverbs. उसको कैप्चर करना होगा और स्पीड पढ़ना होगा, राइट, सो दैट यू कैन इंप्रूव योर एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी इन रीडिंग. जैसे स्पीकिंग का फ्लुएंसी है ऐसा ही रीडिंग का भी फ्लुएंसी चाहिए. यू हैव टू बी फ्लुएंट रीडर. टाइम मैनेजमेंट, आपको 1 घंटा है, 1 घंटे में 3 पैसेजेस हैं, यानी ईच पैसेज टेक्स 20 मिनट्स और 20 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस है. मान लीजिए 10 या 15 क्वेश्चंस आसपास है या 12 क्वेश्चंस है या 13 है. सो यू हैव टू रीड within 15 minutes and understand everything, and within 5 minutes you have to transfer your answer. और आपको रीडिंग में आंसर देते वक्त 1 घंटा से आप ज्यादा ले रहे हैं तो आपको क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकता है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड योर टाइम मैनेजमेंट इज नॉट एक्यूरेट. सो यू हैव टू फिनिश विद इन द टाइम लिमिट, देन यू कैन इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड. देन रिकलेक्शन, कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और आंसर जब ढूंढने जाएंगे ऊपर पैसेज में तब क्वेश्चन क्या था वो भूल जाएंगे आप. सो यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू मेमोराइज कि दीज आर माय क्वेश्चंस एंड आई नीड टू अंडरस्टैंड इन द पैसेज. सो रिकलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. देन फाइंडिंग आंसर, आंसर को कैसे ढूंढना है वो एक ट्रिक सीखना जरूरी है. ऐसा नहीं कि आपको पैसेज का हर चीज समझना है, हर चीज पढ़ना है, एवरीथिंग इन डिटेल्स यू हैव टू नो बिकॉज यू डोंट हैव टाइम. ऑन द डे ऑफ टेस्ट, it's not your preparation day, it's your test day, and you have to learn how to transfer answer and how to find answer in the passage. तो इसमें मैं आपको one by one एक ideas दूंगा here. So what exactly in a reading comprehension? Reading comprehension is a way of understanding what is being read. In simple words, reading comprehension means a passage which is to be read and comprehended. What makes comprehension passages a nightmare for the students in the diverse range of topics that are covered, the vocabulary used in the passage and the time limit given in the exams. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि जैसा जिस तरह से आप कोई टॉपिक को पढ़ेंगे उसमें अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है और जो भी पैसेज आपको दिया जाएगा उस पैसेज को एनालिसिस के वे में समझना जरूरी है. उसका वोकैबुलरी, डिफरेंशिएशन, रूट, ओरिजिन, मैसेज क्या है, ओपिनियन क्या है, टोन क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट इट. ये ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाएगा, आप आज पढ़ लिए कल कोई भी पैसेज आएगा तो आप कवर कर देंगे, आपका वोकैबुलरी रेंज ज्यादा है, ये नहीं है. एक सर्टेन टाइम पीरियड होगा, उसी टाइम पीरियड में आपको खत्म करना है. तो उसको आपको समझना होगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओके एरियाज और द टॉपिक्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. वो क्या क्या, कभी कभी सोशल साइंसेस होगा, टॉपिक होगा बेस्ड ऑन हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट. कब कब टॉपिक नेचुरल साइंसेस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, इसके ऊपर होगा. ह्यूमैनिटीज में आएगा आर्ट्स, म्यूजिक, लिटरेचर, फिलोसफी आएगा. बिजनेस में आएगा इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेस. आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है बट यू आर नॉट फाइंडिंग एनी टॉपिक रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, राइट? So you have to improve your reading skill. That's why it is highly recommended to read newspaper, magazine, and try to be updated with a variety of topics.
इंफॉर्मेशन कलेक्शन जरूरी. देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ओके कम इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. कभी कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस होगा, मेन आइडिया के ऊपर क्वेश्चंस होगा, टाइटल रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, इन्फरेंस डिफरेंस निकालने का क्वेश्चन होगा, टोन को समझना क्वेश्चंस होगा. ओके तो जो किस टोन से कहा गया है, व्हाट डज इट मेक सेंस, हाउ यू कैन क्रिएट सेंस इनसाइड. अनदर वन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ट्रिक्स क्या है. द ट्रिक्स इज इट इज कॉम्प्लेक्स स्टडी टू डिकोडिंग. आपका ब्रेन पढ़ लेगा इंग्लिश को, लेकिन समझना वाला चीज वो क्वेश्चन मार्क होगा. यू कैन रीड इंग्लिश, नो डाउट अबाउट इट, यू कैन प्रोनाउंस इट, यू कैन रीड इट, बट द point is whether you have understood it. पढ़ना और समझना दो चीज अलग अलग है. Always remember. Now you are reading newspaper. It doesn't mean that you understand news. Okay? Understanding news is different and reading a news is different. तो इसमें कुछ टेक्निक्स हैं you have to apply. One, do not overemphasize on essential. Okay? Non-essential. Do not overemphasize on non-essential. कुछ points, कुछ राइटिंग, कुछ vocabulary इतना जरूरी नहीं है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है. जैसे is, am, are, was, on, can, could, may, might, okay, in, on, down, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं, उसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है. आपको ज्यादातर नाउन्स क्या है, मेन वर्ब्स क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वो सारे इंपॉर्टेंट है. थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, आइडिया क्या है, कहाँ किस टॉपिक के ऊपर बोला जा रहा है, that are important, okay, for to analyze. Questions क्या है, आंसर क्या है, this much, इसमें ही दिमाग लगाना होगा. Do not memorize. रट्टा नहीं मारना है कि यही चीज है, यही चीज होगा, and have to know everything. उसका फ्लो, स्ट्रक्चर, सारे पॉइंट्स आपको समझ लेंगे, हर चीज को प्रायोरिटी देंगे, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर बार बार पढ़ेंगे रीडिंग को. ये नहीं है. ओके You have to understand. Understanding को improve करना होगा. Then only you can answer it better. Do not read the passage first. पहला questions को जाइए, questions को पढ़ लीजिए, फटाफट question को समझ लीजिए. Understand the question first. Then you come back to the passage and work on it. Do not overemphasize on vocabulary skills for reading comprehensions. पूरा vocabulary सब समझ में आना चाहिए आपको. शेक्सपियर ये बोला था, ये और स्टेटल का पॉइंट्स ये था. No, these are the roots, these are the origin, these are the idioms. These are इतना understanding vocabulary के ऊपर नहीं चाहिए. Understand the group of words. Understand the sentence. That is very important here. Now, do not spend time on RC that you cannot comprehend at first. जो इस चीज में आंसर नहीं दे पा रहे हैं उसको छोड़ना है. जहां जो चीज आप आंसर दे पा रहे हैं उसको जल्दी फटाफट करना है आपको. Then you can manage your time. नहीं तो एक क्वेश्चंस में लटक गए और ज्यादा टाइम दे दिए तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते करते टाइम चला जाएगा. और रेस्ट ऑफ क्वेश्चन इजी है, लेकिन एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को पकड़ के बैठे, इजी क्वेश्चन के लिए टाइम भी नहीं आएगा. सो यू विल बी अ लूजर. सो हियर डू नॉट थिंक द करेक्ट ओपिनियन वुड कम फ्रॉम आउटसाइड द पैसेज. ओके, पैसेज में जो लिखा है उसी चीज भी होगा, उसी में ही आपको ऑप्शन ही है, ये मत सोचिए. कुछ मीनिंग आइडियाज बाहर से भी जरूरी होते हैं. Any of the options, okay, that is out of scope is never correct answer. कोई भी चीज दूसरे आइडिया से आया है, पैसेज से बाहर वाला चीज को बोला गया है, वो नॉट गिवन है. राइट आंसर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज. पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वही ही करेक्ट आंसर है. और विच आर आउटसाइड वो डिस्ट्रैक्शन है, आपको दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इधर उधर का इंफॉर्मेशन भी डाल देंगे, just to distract your mind. So you have to be very careful about it. Do not rely on trigger words. Okay? Trigger words क्या है? You might get trapped in the web of trigger words. कैसे? You don't read attentively. आप attention देके पूरा पैसेज को thoroughly नहीं पढ़ रहे हैं. The passage may focus on one point. Okay? For quite a bit of sentences. एक point में कुछ sentence को लेके बनाया गया है. Then change it towards the end of trigger words like कभी कभी बट लगा गया है, हाउएवर है, सेकेंडली, फर्स्टली, मोरएवर, पार्टली. ओके, कुछ इस तरह से कुछ वर्ड आ गया है जो कि एक्चुअल मीनिंग को चेंज कर दे रहा है. कुछ इस तरह से वर्ड आएगा, वो होल वर्ड पूरा मीनिंग को ही चेंज कर देगा. क्वेश्चंस में लगेगा पढ़ लिए और जब पैसेज में जाएंगे तो यही आंसर है ऐसा लगेगा, बट उसमें एक ऐसा वर्ड होगा, वो एक वर्ड उसको फॉल्स कर सकता है. सो यू हैव टू बी वेरी
okay, updated, and you have to be very smart to understand it. Make notes. जब भी पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस करें ना, नोट्स बनाइए. ओके, जब नोट्स बनाएंगे उस डिफरेंशिएशन निकालेंगे, पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. पहले पैसेज में 3-4 पैसेज में ज्यादा टाइम लगाना है टू इम्प्रूव योर रीडिंग हैबिट एंड स्पीड. इमीडिएटली जल्दी नहीं होगा. देन यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर मॉक टेस्ट. देन ट्राई टू एंटिसिपेट क्वेश्चंस को एंटिसिपेट कीजिए. क्या हो सकता है, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या हैं. सो वो क्या होता है कि जब भी आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, ओके, रीडिंग में, उसमें मास्टर होने का सबसे बड़ा चीज है किंग ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. वो क्या है, रीड पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, रीड द पैसेज प्रॉपर्ली, आइडेंटिफाई कीजिए कि पॉसिबल क्वेश्चंस क्या क्या है और क्या क्या आप पूछा गया है और कहां कहां वो आंसर है इसमें, वो कैच कीजिए. वहां पे काम करना है आपको. देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैराग्राफ्स रिक्वायर एक्स्ट्रा फोकस. किस तरह से ओपिनियन दिया गया है और पैराग्राफ को क्लोज किया गया है, क्या बोला गया, क्या ऐसा क्लोज किया गया, उस आइडिया को पकड़िए. उसमें टाइम आपको देना है और समझना है कि क्वेश्चन ये पूछा गया है, उसको बिगिनिंग में इस पे दे दिया लेकिन एंड में ये नहीं है कि बीच में नहीं है, तो अलग सा कोई पैराग्राफ में होगा. ये डिफरेंशिएशन निकालना है. और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कहां पे है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कहां पे छुपा हुआ है इसके बारे में, वहां पे आपको फोकस करना है. देन कंस्टेंटली क्वेश्चंस योरसेल्फ व्हाइल रीडिंग द पैसेज. जब पैसेज पढ़ रहे हैं खुद को बार बार क्वेश्चन पूछिए. इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंसंट्रेशन व्हाइल रीडिंग. जब आप रीडिंग में कंसंट्रेशन डालना चाहते हैं, मेक श्योर दैट सम बेसिक क्वेश्चंस कीप प्लेइंग एट द बैक ऑफ योर माइंड. कुछ सवाल दिमाग में दौड़ना चाहिए. व्हाट इज द ऑथर्स मेन पॉइंट, इसमें ऑथर्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ऑथर किस टॉपिक के ऊपर लिखा है और क्यों लिखा है इसके ऊपर, वो सवाल खुद को पूछिए. कौन सा चीज को वो समझाना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, यहाँ पे दिमाग में वही क्वेश्चन डालिए. क्या क्या मेटेरियल यूज किया क्या है, कौन कौन कैरेक्टर यूज हुए हैं, कौन कौन सा इंफॉर्मेशन डाला गया है, कौन सा हिस्ट्री कहाँ पे टॉपिक लाया गया है, किस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कब कहाँ पे टाइम सिचुएशन, उसमें थीम क्या दिया गया है, राइट, उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए. किस टॉपिक के बारे में वो लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं और उस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या डाल रहे हैं, वो सारा चीज को इंप्रूव कीजिए. फोकस कीजिए उस जगह पे. सब्जेक्ट क्या है, उसमें क्या क्या चीज को आपको अचीव करना है, उसका मेन थीम को अचीव करना है, अंडरस्टैंडिंग लाना है और इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना है, राइट. देन आपका आ गया IELTS का रीडिंग का ट्रिक्स. द 10 टाइप्स ऑफ रीडिंग क्वेश्चंस. IELTS का रीडिंग में 10 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आएगा. पहला चीज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएगा, इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस आएगा, इंफॉर्मेशन मैचिंग होगा, कौन सा पैराग्राफ में ये लाइन मैच कर रहे हैं दिखाओ वो बोलेगा. हेडिंग आएगा, एक छोटा छोटा हेडिंग होगा और ये हेडिंग कौन सा पैराग्राफ में है. सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं. समरी कंप्लीशन होगा, समराइज किया गया होगा, उसमें कुछ चीज ब्लैंक्स हैं या गैप्स हैं, उसको फिल करना है. फीचर्स मैचिंग होगा, एक एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन फीचर्स होगा, वो कौन कौन सा पैराग्राफ कहां से मैच कर रहे हैं. मैचिंग सेंटेंस एंडिंग, सेंटेंस का एंडिंग में मैच करने के लिए आएगा. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएगा, मैचिंग इंफॉर्मेशन आएंगे. सो ये मैचिंग वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इन IELTS रीडिंग एंड यू हैव टू गिव लॉट ऑफ अटेंशन हियर. नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि ABCD से होते हैं, वो मल्टीपल चॉइस होते हैं. इंफॉर्मेशन आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन ज्यादातर आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैसेज में ये सारी चीज इंफॉर्मेशन है, ट्रू फॉल्स कहां पे है या नॉट गिवन है, यस नो है या नॉट गिवन है, इसके बारे में जानना है. इंफॉर्मेशन मैचिंग, इंफॉर्मेशन पैराग्राफ वाइज में कहां मैच करने हैं, हाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड द पैसेज एंड इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चंस. हेड मैचिंग होगा, एक पर्टिकुलर 2-3 फ्रेजेस दिया जाएगा 1 to 10 और नीचे पैराग्राफ होगा ABCDEFG. तो एक नंबर वाला कौन सा पैराग्राफ में मैच कर रहे हैं, वो पैराग्राफ को मैच करना है हेडिंग के साथ. सेंटेंस कंप्लीशन, इसमें आपको सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करना है वर्ड्स में, टेक्स्ट में. सो उसमें मैप करना होगा कहां है, कौन कौन सी जगह पे लोकेशन है, किस किस जगह पे इस चीज को बोला गया है, वो लोकेशन को चूज करना होगा पैसेज में. समरी कंप्लीशन, समरी दिया जाएगा, उसमें पर्टिकुलर वर्ड्स को पिक करना है और कंप्लीट करना है सेंटेंस को, क्वेश्चंस में होगा वो.
फीचर्स मैचिंग होगा। ये क्या है, क्वेश्चंस यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कौन सा जगह पे दिया गया है, जैसे कि डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट थिंग्स में किस तरह से कहा गया है, तो आप डिस्कवर करना है अंदर से व्हाट टाइम और व्हेन ये चीज हुआ है, सो उसमें आपको मैचिंग करना होगा। देन मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स, सेंटेंस का एंडिंग आप कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, पार्ट ऑफ सेंटेंस इज ओके पिक्ड फ्रॉम लाइन इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के लाइन में पार्ट ऑफ द सेंटेंस होगा और उसी को मैच करना है एंडिंग। ओके, एक सेंटेंस का एंड कैसा हुआ है, सो दैट इज द वे यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो। जस्ट अ मिनट, ये अविलेश सर, यस ज्वाइन करोगे सर? या क्विक क्लास इज गोइंग ऑन, फाइन। देन what you need to share is just to locate, okay, आपको सिर्फ ठीक जगह पे पहुंचना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है विद द करेक्ट आंसर। देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, इसमें आपको केयरफुल रहना होगा और आंसर आपको देना होगा। देन मैचिंग इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है करेक्ट है, यस और नॉट गिवन है, तो बहुत सारे चीज को मैच करना होगा और इन्फॉर्मेशन कौन सा प्लेस में कौन सा जगह पे फिट हो रहे हैं वो पैसेज में, वो थोड़ा आपको ढूंढना होगा। देन इसमें कुछ ट्रिक्स हैं दैट यू कैन अप्लाई। रीड मेन आर्टिकल्स, उसका जो आर्टिकल्स है पैसेज का मेन आर्टिकल्स को पहले पढ़ना है। स्कीमिंग में काम करना है, पहले स्कीम फटाफट पढ़ देना है। ओके, देन स्कैनिंग, आज सिखाऊंगा मैं स्कीमिंग कैसे करते हैं। देन स्कैनिंग, टिक बिट पढ़ना है, ठीक से हर चीज को छोड़ना नहीं, वो तो अंडरलाइन करना है और जहां पे कौन सा चीज का आंसर आपको पॉसिबल लग रहे हैं उसमें जस्ट अंडरलाइन करके वो नंबर डाल देना है। देन यूज द कीवर्ड्स, उसका जो मेन कीवर्ड्स हैं, जो आपको क्वेश्चंस का सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है और वही कीवर्ड्स पैसेज में जाकर ढूंढना है। टाइटल को समझना होगा क्वेश्चंस का, वही टाइटल कहाँ पे है वो पैसेज में ढूंढना है। टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत जरूरी है, फटाफट करना है विद इन 60 मिनट्स बिकॉज यू हैव ओनली 1 hour विद द 3 पैसेजेस, लॉन्ग पैसेजेस हैं, राइट। अनदर वन, क्विक चेक ग्रामर, ग्रामर चेक करना है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, जब लिखेंगे कुछ स्पेलिंग भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। And you can understand the grammar of the reading comprehension. ऐसा नहीं कि आपको सारा टॉपिक्स पढ़ना है, आप सिर्फ you have to focus on the main part, then only you can go by that. You don't need to go by everything. Yes. ज्वाइन नहीं हो रहा है। Google Meet में ज्वाइन करो। Wait a minute. Right? You need to go by this process. That's going to help you a lot. Now, if you can find an answer of the current questions, लीव इट, पेंडिंग रख लीजिए, प्रोसीड कीजिए, दूसरी जगह पे जाइए। जब, और ये चीज याद रखिए, इट इज वेरी ट्रैजिक टू आंसर ऑल क्वेश्चंस इन द क्वेश्चंस पेपर एंड गेट कॉट बाय द टाइम बिफोर ट्रांसफरिंग इट टू द आंसर शीट। आंसर शीट में आंसर देते देते टाइम नहीं होगा, आपको सारे सवाल समझ में आ गया लेकिन आंसर दे नहीं पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम होगा। तुरंत जब भी आंसर मिल गया फटाफट आंसर लिखते जाइए बॉक्सेस में, आपको आंसर शीट दिया जाएगा, उसमें डालना है। देयर आर दोज क्वेश्चंस वो डिक्टेट द नंबर एंड वर्ड्स, कहाँ क्या चीज है उसको आपको समझना जरूरी है। एक्सक्यूज शी हैज जॉइंड हियर। फाइन, and there are those questions that dictate the number of words, like ensure that you abide by the rules के हिसाब से जाएंगे। count your words one by one, then remember the that a vowel in a sentence में vowel में क्या है, a है, is also counted as a word, एक सिंगल a भी एक काउंट होता है वर्ड में। तो आपको यदि आंसर देना है within 2 words or more than 2 words, then you have to count it and you have to write accordingly. इवन एक सिंगल ए भी मिस्टेक कर सकता है, वो भी एक काउंट होगा आंसर में। ओके, Elipsa, unmute yourself. Yes, sir. Next one, spelling mistakes will always count. Spelling mistakes हो गया तो आपका मार्क कट जाएगा। Always remember, you have to improve your spelling. There are those questions that you are required to complete the sentence. कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ही जरूरी होगा, आपको फुल अटेंशन देना है और कहां पे वो ये वर्ड और वो पैसेज में कहां पे है वो अच्छे से समझना होगा।
and you have to remember it. Then there is something called intelligent guessing. एक इंटेलिजेंट गैसिंग करना होगा कि पॉसिबिलिटी कहां पे है, कौन सा चीज को मैच कर रहे हैं और यही चीज ही होगा, तो कंफर्मेशन थोड़ा आपको लाना होगा. एट टाइम्स अनफॉर्चुनेट हैपेंस, कभी कभी आपको आंसर पता होगा लेकिन आप पे फिर डाउट आ जाएगा. आप ए बी सी के जगह पे आपको पता है कि ए आंसर है, फिर भी कंफ्यूजन होगा, सी आप डाल देंगे बॉक्स में. सो चांसेस हैं उसमें थोड़ा सा फेल्यूर होने का. बट यू हैव टू बी okay well understood and you have to understand the passage thoroughly before you give final confirmation. दूसरा चीज देखिए यहाँ पे looking in the telescope. okay ये एक पैसेज है looking in the telescope. ये इसको आप पढ़ेंगे तो टेलीस्कोप के बारे में आपको नॉलेज नहीं है बट आप समझ रहे हैं व्हाट इज टेलीस्कोप. सो लुकिंग इन द टेलीस्कोप यानी टेलीस्कोप के बारे में कुछ लिखा गया है. इट्स सिंपल इंटेलिजेंट गैस है. A story is told around 400 years ago. एक 400 years के ago में एक story कहा गया. Some children were fooling around in an eyeglass shop. They noticed that when they placed lenses one on top of the other, they were able to see considerable distance. They played around with the concept of a while, experimenting with what happened when they varied the distance between the lenses. Right? Now you are going to read it in this way. आप एक पैसेज को इस तरह से पढ़ लेंगे. The moment you understand कि आपको एक लाइन बाय लाइन सारी चीज को याद रखना होगा कि स्टेप बाय स्टेप आप समझना होगा. Then this is a passage. Okay? उस पैसेज को फिर पढ़ रहे हैं आप अच्छे से. Passage is going on. उसमें 1 to 5 questions आ गया. Choose the correct letter. A B C D है. ये मल्टीपल चॉइस है. लेकिन आपको मैंने बताया था पहले कि यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट देन पैसेज. पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, क्वेश्चंस को समझना है, देन पैसेज में जाना है. क्वेश्चंस ये है, देख लीजिए. चूज द करेक्ट लेटर ए बी सी डी. राइट द करेक्ट लेटर इन द बॉक्सेस 1 to 5. 1 to 5 का जो बॉक्स दिया जाएगा आपको आंसर शीट में, वो बॉक्स होगा. एंड अकॉर्डिंग टू द राइटर द फर्स्ट टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय चिल्ड्रेन और मेड बाय ए लेंस मेकर और ए रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप और उसमें क्वाइट ए कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट. ये क्या है ये आपको समझ में आ गया. सो आपको क्वेश्चन को समझना होगा. अकॉर्डिंग टू द राइटर्स द फर्स्ट टेलीस्कोप वाज. ओके, सीधे आ जाएंगे यहाँ पे. अभी यहाँ पे ढूंढना है वो आंसर को, और आप जब पढ़ रहे हैं जब भी आपको आंसर का याद आ गया उसमें अंडरलाइन करके नंबर 1 बोल के इसमें लिख दीजिए पैसेज में, और आपको रफ नोट है तो उसमें रफ में लिख दीजिए. सो दैट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफरिंग योर आंसर आप फाइनल आंसर देंगे, क्योंकि आपका पेंसिल और इरेजर भी रहेगा. गलती भी हो गया तो उसको इरेज करके आप ठीक कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो इन दिस वे these आर द क्वेश्चंस यू हैव टू गो बाय. ओके, ये आंसर शीट है, आंसर का डिस्कशन है, दैट विल गो बाय लेटर. ऐसे ही पैसेज 2 आएगा तो आपको पैसेज 2 पढ़ना है. ये सब पैराग्राफ वाइज है. 14 to 20 क्वेश्चंस है. लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इस तरह से होगा, ये हेडिंग्स हैं. फाइन, इसमें आपको क्वेश्चंस मैचिंग है, इसको आपको ढूंढना होगा. ये है इसका आंसर, वो वाला चीज बाद में हम देखेंगे. फाइन, एज इट इज योर फर्स्ट सेशन सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द रीडिंग इज ऑल अबाउट. ये पैसेज 3 होगा, फिर 20 मिनट्स 28 से 40 क्वेश्चंस हैं. You have to read fast, understand fast. The first you have to go through the questions, then you have to start. ये yes no, ये true false not given है. ट्रू यानी वो स्टेटमेंट मैच कर रहे हैं तो ट्रू है, एक्चुअली है तो, लेकिन वो स्टेटमेंट है लेकिन उसको अलग सा कुछ वर्ड यूज किया गया है और इंफॉर्मेशन फॉल्स है, उसी में जाएंगे. बिल्कुल नहीं है वो इंफॉर्मेशन तो नॉट गिवन हो जाएगा. राइट, एंड ये सारे क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस. द आंसर्स दैट वी कैन डिस्कस दिस लेटर ऑन. फाइन, सो इट वाज योर रीडिंग स्टाइल. ये था आपका रीडिंग का टेक्निक्स. So right now you can ask me the questions. I can really help you.